ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो भूये सत्त्वसाहुणम् ऐसो पंचणमुत्कारो सत्त्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्. As we all know, COVID-19 has impacted the mental and physical health of all the students. Lot of hardships has been faced in terms of money, time, and resources. So there is a requirement that we provide calm and steady environment to students, especially when their board exams are near approaching. So in this session, we will be acquainting all the students about how to prepare, how to present papers in the exam, what should be the parents' role during their child's exam. Also about the tips of time management, revision tips of, and also answer writing tips. So lot of more such discussions will be happening by the speakers. So for our speakers, so today's speaker are Dr. Meghnaji Dangi. Quick introduction of Meghnaji. She is presently working as associate professor at Oro University and has over 2 years, 2 decades of experience. She has PhD in field of behavioral finance. She is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India and Cost and Management Accountants of India. She has various publications and presents research papers regularly at national and international conferences, including IITs and IIMs. She possesses 6 years of corporate experience. Her rich and in-depth knowledge of working in corporates, along with her academic learning and experience, has given her a unique perspective in teaching the subjects of management. She is working in Oro since last 8 years and has held various portfolios and is also a part of various university level committees. She was instrumental in setting up Oro Innovation and Incubation Cell. Presently, she is the program coordinator of postgraduate diploma in financial markets. She is also the convener of national level seminars in field of financial markets. So this was about Meghnaji. She will be telling us about the preparation part, how to manage time during the examination, and about the mindset of students. Handing over to Meghnaji. Meghnaji, please. Thank you so much, Pooja. I hope I am audible properly. Yes, ma'am. Okay. Thank you for the wonderful introduction and this opportunity. मैं तेरापन प्रोफेशनल फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी भारती जी ने और तेरापन प्रोफेशनल फोरम के सारे महानुभावों ने कि मैं थोड़ा बहुत शेयर कर सकूं, क्योंकि ये बच्चों का बड़ा ही क्रूशियल टाइम है, बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिल जाता है, थोड़ा सा अगर हम उनकी हैंड होल्डिंग कर पाते हैं, थोड़े से स्ट्रेस को उनको कम कर पाते, थोड़ा रिलैक्स कर पाते, तो आई थिंक ये बच्चों की प्रिपरेशन के लिए और आगे बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए काफी यूजफुल रहता है। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया तेरापन प्रोफेशनल फोरम ने और मैं टीपीएफ को इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी। तो इससे पहले कि हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। थोड़ा सा एक बच्चों को टिप्स मिल जाए, इसलिए कुछ टिप्स के तौर पे स्क्रीन एक छोटा सा पीपीटी है। आजकल हम वैसे भी काफी ऑनलाइन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो बच्चे तो वैसे ही टेक savvy हो गए हैं, तो आई थॉट कि इन लाइन विद दैट मुझे भी एक पीपीटी बनाना चाहिए। सो पर्चे पे चर्चा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये जो पर्चा है, इससे बच्चों को जनरली थोड़ा सा बहुत सारे डाउट्स होते हैं,
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने ना केवल बच्चों को देखा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करते हैं, बल्कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे इस दौर से गुजर चुके हैं। इनफैक्ट मेरी डॉटर अभी क्लास 12th का एग्जाम देगी। सो इसलिए ये टॉपिक बहुत सही टाइम आपने चुना। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हम किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्जाम को यदि हमें फेस करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिपरेशन। ओके, मतलब प्रिपरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम प्लान नहीं करते हैं, तो फिर हम अगर हम हमारा गोल सेट नहीं करते हैं, तो फिर हमें पता नहीं होगा कि हम कौन से गोल के पीछे हम ऐसे ही भाग रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और हमारा प्लान क्या होना चाहिए और हम उसे अचीव कैसे करेंगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तब तक आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। दैट इज वाई यहाँ पे एक कोट मैंने लिखा है, मेरा बड़ा फेवरेट कोट है, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एप्लीकेबल है। Failing to plan is planning to fail, right? So it is very important that we plan our schedule on a daily basis, we plan how to prepare for the exam, how to write for the exam। उसके लिए तो खैर जयश्री जी हैं, she is very experienced in this field, तो वो हमें बताएंगी उसके बारे में। But planning is very very important, right? And हम जैसे एक ट्रेन का एग्जाम्पल ले, अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा। अगर हम बॉम्बे की तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे तो हम दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चा अपना गोल डिसाइड करे। जो भी स्टूडेंट है वो गोल डिसाइड करे कि उसका क्या गोल है। उसे हर कोई कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने, लेकिन एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग करें, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट मार्क्स एट ऑल। मार्क्स एक 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 पैरामीटर है आपके सक्सेस का। सक्सेस के जो डायमेंशन है वो बहुत सारे होते हैं, एंड हमें हर 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 स्टूडेंट कोई 95, 98, 99% ये कोई क्राइटेरिया हमें नहीं सेट करना चाहिए। ये एक माइंडसेट है जिसको हमें बदलना होगा। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, बट एट द सेम टाइम मार्क्स के पीछे ना भाग के हम नॉलेज एक्विजिशन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग रन में वो बेटर रहेगा। कई बार हमने देखा है, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे आते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत सारी बेसिक चीजें, बहुत सारे फंडामेंटल्स उनके क्लियर नहीं होते। तो स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी कि क्योंकि वो एक बेस है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि नॉलेज एक्विजिशन कैसे हो उनकी, रादर देन मार्क्स के पीछे भागने वाली चीज। सेकेंड चीज की प्रिपरेशन कैसे करें वो मैं आगे भी बात करूंगी, लेकिन प्रिपरेशन इज अ जर्नी। वो ऐसे नहीं है कि हम एग्जाम अगले दिन है तो उसके एक दिन पहले हम 18 घंटे पढ़ लें तो हम ना मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर से लेके सुनील गावस्कर से लेके जो भी सक्सेसफुल क्रिकेटर्स की ही चलिए बात करें, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है, आई एम श्योर जो भी रिलैक्सिंग टाइम होता होगा बच्चे उसमें इंडिया इंग्लैंड का मैच जरूर देखते होंगे, राइट? तो आपने देखा होगा कि कितनी प्रैक्टिस करते हैं ये स्पोर्ट्समैन सो दैट वो किसी भी मैच में खेल पाते हैं। तो बोर्ड का प्रिपरेशन भी कुछ इसी तरह का है। ये वन टाइम प्रिपरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट प्रिपरेशन है, जो कि उनको डेली बेसिस पे शुरू से ही प्लान करके करना होगा। और बेस्ट प्रिपरेशन क्या है? बेस्ट प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन है जिसमें हम डेली बेसिस पे अपना बेस्ट दें। व्हाट कैन वी डू बेस्ट टुडे, टुमारो विल ऑटोमेटिकली बी ऑल राइट। टुमारो जो कल आने वाला जो कल है वो अपने आप ही हैंडल हो जाएगा अगर हम आज के दिन को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन मेरे हिसाब से। हम इस इंटरेक्शन को इंटरैक्टिव रखते हैं। अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो अपने चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भी डाल सकता है। हम एंड में सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि अर्जेंट है, अभी ही आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आई थिंक हम वो क्वेश्चन अर्जेंटली भी ले सकते हैं। तो प्रिपरेशन की तो बात हो गई, लेकिन प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन का शेड्यूल क्या हो, राइट? ये एक ग्रिड है। बेसिकली हमारे पास जो भी काम है, जो भी टास्क है, जो भी एक्टिविटी है, हम क्या करें,
थोड़ा सा उसके बारे में प्लानिंग करें, राइट। सो अगर आप प्लान करेंगे अपनी पढ़ाई को तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जो कि अर्जेंट है, अर्जेंट यानी जो हमें अभी करनी है, जिसको हम टाल नहीं सकते, राइट, तो वो अर्जेंट होती हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब जो कि जिसको करना बहुत जरूरी है, राइट। अर्जेंट मतलब जिसको अभी करना है, और इम्पोर्टेंट मतलब जिसको करना जरूरी है, राइट। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है, जितने भी हमारे टास्क है, जो भी हमारी हमारी पढ़ाई है, जैसे भी हमें स्टडी करना है, आप उसको अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट में बांट दें। ये एक ये केवल एक एग्जाम की प्रिपरेशन की बात नहीं है। आप लाइफ में अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत लिमिटेड ही होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, जो मेरे लिए भी वर्क करता है, मैं भी जैसे यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, घर भी देखना पड़ता है, सोशल भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। मैं भी इस चीज को यूज करती हूँ, एंड आई एम श्योर जितने लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग इस ग्रिड को जरूर यूज करते हैं। वो अपने काम को बांटते हैं इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट के बीच में, और अर्जेंट और नॉट अर्जेंट के बीच में। तो आप देखिए कि इस तरह से अगर आप ग्रिड बनाएंगे ना, तो आपके पास में 4 खाने आ जाएंगे, आपको यहाँ पे 4 स्क्वायर दिख रहे होंगे, राइट। सो सबसे पहला है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, दूसरा है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, और चौथा है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। अब देखिए, हमारे पास हाथ, 2 ही हाथ हैं, एक ही दिमाग है, तो हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो हमें किस चीज पे ध्यान देना होगा, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या चीज हम पहले करें, क्या चीज बाद में करें, क्या चीज करें या ना करें, राइट। तो सबसे पहले हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए जो इम्पोर्टेंट भी है और जो अर्जेंट भी है। इम्पोर्टेंट मतलब जो जरूरी भी है और जिसको अभी करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 12th का कोई बच्चा है, राइट, तो उसका शायद कोई प्रैक्टिकल एग्जाम है। बच्चे सोचते प्रैक्टिकल एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ये तो हम हैंडल कर ही लेंगे। नहीं, आपको किसी भी चीज को हल्के से नहीं लेना है, उसके लिए अपना 100% देना है, राइट। तो कल आपका सपोज करिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम है, और आज आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिसोनेंस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कल आपका जो भी एग्जाम है, आप उस चीज को पहले पढ़िए, उस चीज के बारे में 100% तैयार हो जाइए कि ये मेरा ना पक्का होना चाहिए। और अगर 20 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल है, तो मुझे 20 में से 20 आने चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज वो तो मेरे स्कूल में होने वाला है, स्कूल का एनवायरनमेंट जाना पहचाना एनवायरनमेंट है, शायद स्कूल के टीचर भी होंगे, एक्सटर्नल तो होंगे ही, लेकिन स्कूल के टीचर भी होंगे, तो इसमें तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा है, इम्पोर्टेंट तो है बट अभी अर्जेंट नहीं है, ठीक है, मतलब अभी के अभी अगर मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो भी चलेगा। तो इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। एक बार आपने वो चीज कर ली जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, तो सेकंड आपको करनी है जो इम्पोर्टेंट है पर अभी के अभी ना करो तो चलेगा। तो ठीक है, एक बार आपका इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट हो गया, तो आप उस काम को करिए जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। अगर आपके पास ये दोनों काम आपने कर लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, तो आपके पास अगर टाइम बचा है, एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है, तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए। अगर आपको पता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पोर्शन बहुत ज्यादा है, जैसे कि सोशल स्टडीज, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, एग्जाम बाद में, लेकिन आप जानते हैं उसका पोर्शन ज्यादा है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको पता चलता है इतने सारे चैप्टर्स होते हैं। तो जब अगर आपके पास खाली है टाइम, तो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आप उस चीज को सेकंड प्रायोरिटी पे लाइए। नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, अभी के अभी आपको करना है वो काम। फॉर एग्जाम्पल, आपके ट्यूशन सर ने आपको कुछ एक्सरसाइज दे रखी थी, उन्होंने कहा था बेटा आप ये कर लोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, वो आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्योंकि आप ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन सर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतना तो प्रैक्टिस करके आएगा बच्चा, या आपकी टीचर बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं कि बेटा ये पढ़ लेना,
तो आई थिंक आपको वो चीज डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, वो थर्ड आनी चाहिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में। और फोर्थ है नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, मतलब जरूरी भी नहीं है और अभी के अभी करना भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को आप अवॉइड करें, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो लिमिटेड ही है, उस टाइम में हमें बहुत सारी चीजें करनी है, तो हम क्या करें क्या नहीं करें। क्या होता है, बच्चे जब प्रिपेयर करना चालू करते हैं तो बड़े जोर शोर से सुबह से स्टार्ट तो कर देते, शाम तक आते आते वो सोचते अरे ये तो मुझे आज करना चाहिए था लेकिन मुझे तो टाइम ही नहीं मिला इसको करने का। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, इट बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग दैट वॉट एवर शुड हैव बीन डन दैट इज नॉट डन। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 10th और 12th। 10th के बच्चे जो होते हैं अभी उतने मैच्योर नहीं होते हैं, उतना वो लोग प्लानिंग इतनी अच्छे से नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंट्स अगर उनके साथ में बैठे, उनके पूरा ध्यान रखें और उनकी प्लानिंग में मदद करें तो बड़ी अच्छे से ये प्लानिंग की जा सकती है। जहां तक कि हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, शेड्यूल की बात करते हैं, तो आप देखिए कि हमारे पास में कितने घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए। मेरा एक ये रफ एस्टिमेट लगाया है, एक बच्चे के पास में कितना टाइम रहता है। अब देखिए दिन के अंदर टोटल घंटे होते हैं 24, उसमें से ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये करना बहुत जरूरी है। मील्स देखिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पौष्टिक आहार करना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे तो खाना पीना ही छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड रहता है, राइट। जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, उसको पौष्टिक आहार खुराक टाइम टू टाइम नहीं मिलेगी, तब तक आपका माइंड भी अच्छे से नहीं चलेगा। फिर बच्चों को वीकनेस आ जाती है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। और अभी तो हम, क्योंकि आप सब जानते हो हम लोग कोरोना टाइम से गुजर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोरोना की हम अपनी हेल्थ का, अपनी इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखें, राइट। तो 3 घंटे हमारे चले जाते हैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के अंदर। 2 घंटे जैसा तो हमें रिलैक्सेशन टाइम भी चाहिए। रिलैक्सेशन क्यों चाहिए आगे मैं इसके बारे में बात करूंगी। 8 घंटा हमें सोना बहुत जरूरी है, राइट। बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने माइंड का यूज कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ कोरोना हमारा स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हर बच्चा 8 घंटे की नींद कम से कम ले। वो रात को बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड आवर्स भी नहीं पड़े और सवेरे सवेरे बहुत जल्दी उठ भी नहीं जाए। एक नॉर्मल जिसको बोलना चाहिए ना 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तो हम जैसे कि 11 बजे से 6 बजे 7 घंटे हुए, ठीक है। उठने के आधे घंटे बाद, सोने के आधे घंटे पहले थोड़ा सा अपने आप को शायद टाइम भी लग जाए हमें सोने में, ठीक है। तो इस तरह से 10:30 से समझिए 6:30 बजे तक 8 घंटे हो ही जाते हैं। तो वो हम माइनस कर दे। फिर जो भी मिसलेनियस काम हमारे होते हैं उसका आप मान लीजिए 2 घंटा जैसा निकल गया। तो हमारे पास टाइम कितना बचा 24 घंटे में से? 24 घंटे में से हमारे पास में सिर्फ 8 या 9 घंटे बचे। तो बच्चों और बच्चों के अभिभावक जो बच्चों के पेरेंट्स जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि अभी आपके एग्जाम्स के अंदर करीब महीना भर ही रह गया है और आपको डेली ये जो 8 से 9 घंटे हैं उसको अच्छे से प्लान करना है, उसमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसमें खूब सारी मेहनत करनी है। तो क्यों ना, ये छोटा सा तो टाइम है, 8 से 9 घंटे बस दिन के, दैट्स इट। और वो भी अगले 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने के बाद तो बोर्ड एग्जाम्स आ ही जाएंगे, राइट। आई थिंक बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ गई है और 4 मई से एग्जाम्स चालू हो रहे। सो अराउंड 1 महीना 10 दिन जैसा आपके पास में, 1 महीना 5-7 दिन आपके पास में बचा है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो दूसरे बोर्ड्स की डेट भी आसपास यही होगी। तो बच्चों आपके पास में सिर्फ 8-9 घंटे हैं पढ़ने के दिन में, ठीक है। इसमें ही आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई करनी है। तो आप क्यों ना इसके अंदर पूरा अच्छे से अपनी मेहनत से पढ़ाई करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाउ टू स्टडी, राइट। तो एग्जाम में कैसे आपको परफॉर्म करना है उसमें तो आपको जयश्री मैम बताएंगे, वो जयश्री मैम उस बात में एक्सपर्ट है, मैं उसमें एक्सपर्ट उतनी नहीं हूँ। लेकिन पढ़ाई कैसे करें
थोड़ा सा मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगी। तो ये मेरी थॉट है, हो सकता है आपकी कुछ और थॉट होगी, तो अगर आप शेयर करेंगे मेरे साथ और हम डिस्कस करेंगे इस बात को तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। और मैं ये अभिभावकों से भी कहना चाहूंगी, स्पेशली माताओं से कहना चाहूंगी, क्योंकि माताएं कई बार ना, तो मैथ्स अच्छे से तुम्हारा मैथ्स वीक है, चलो मैथ्स करो, और पूरे दिन बच्चे को ना मैथ्स का ट्यूशन, मैथ्स की प्रिपरेशन, मैथ्स की प्लानिंग, मैथ्स की एक्सरसाइज, पूरा हम एक ही चीज पे पड़ जाते हैं, उस चीज के पीछे, शायद बच्चे को जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना वो लूज हो जाता है, उसको पढ़ाई अच्छी ही नहीं लगती, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो आप ऐसा ना करें, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें। कुछ बच्चों को मैथ्स, कुछ बच्चों को मैथ साइंस बहुत पसंद है, तो ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर दें, पर ऐसा ना हो कि जैसे इंग्लिश, सोशल स्टडीज, स्पेशली 10th की मैं बात करूं तो ये 5 पेपर्स बड़े ही क्रिटिकल हैं, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, मैथ, मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं, राइट। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस ना पढ़े, पर अगर मैथ्स और साइंस आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो ज्यादा से ज्यादा आप उससे करें। और अब मैथ्स और साइंस तो क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर 100 ऑन 100 भी आते हैं बच्चों के, इनफैक्ट सोशल साइंसेस, इंग्लिश, हिंदी सभी में आजकल तो काफी स्कोर्स आते हैं, बहुत अच्छे 90, 95, 98, 99 मार्क्स भी आते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल आपको कितना लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती है, तो ये जो 8-9 घंटे है ना, 8-9 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 30, क्योंकि 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी हो गए हमारे 240 घंटे, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको हिंदी इजी लगती है, हिंदी आपको ऐसा लगता है कि उसकी डिफिकल्टी लेवल कम है, तो कम टाइम दीजिए उसको, ज्यादा टाइम आप उस सब्जेक्ट को दीजिए। जैसे साइंस आपको अच्छा भी लगता है लेकिन आपको लगता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा तभी मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, ठीक है, तो आप उसको नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा एलोकेट करिए। तो ये बेसिकली आपको एक दिन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको पूरे 1 महीने के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि करीब 1 महीना जैसा बचा है अभी बोर्ड एग्जाम्स में। तीसरी बात है लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर, मतलब जो बच्चा है उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स मतलब जो सुन के सीख जाते हैं, सुन के समझ जाते हैं, सुन के याद कर लेते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप ना जब भी लर्न करने की कोशिश करें तो ज्यादा से ज्यादा मुंह से बोल के, मतलब बोल बोल के लर्न करने की कोशिश करें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप रटें, लेकिन मुंह से बोल बोल के याद करें तो अच्छा, आप अपने आप से ही बात करें, ठीक है, वो और लगेगा, लेकिन क्योंकि आप ऑडिटरी लर्नर हो तो अगर आप बोलोगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। जैसे कई बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मम्मी आप मुझे सुना दीजिए, आप मुझे रीड करके दीजिए, तो मुझे याद हो जाएगा। तो हो सकता है आपका बच्चा जो है वो ऑडिटरी लर्नर है, इसलिए आप उसके साथ बैठें, आप उससे डिस्कस करें, उससे सुनाएं, तो उसको अच्छे से लर्न हो जाएगा। दूसरे टाइप के लर्नर होते हैं जिनको कहते हैं विजुअल लर्नर, मतलब वो देखते हैं और फिर उनको एकदम से कंसेप्ट का समझ आ जाता है और फिर सीख लेते हैं वो। तो अभी तो आजकल स्पेशली हम लोग टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा यूज करने लग गए हैं, तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो स्पेशली हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, हर सब्जेक्ट के बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस आ गए हैं, छोटी छोटी फिल्म्स आ गई हैं, यूट्यूब पे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मैं जरूर, अगर आपको उस तरह से आपको सीखना पसंद है, मतलब अगर आप विजुअल लर्नर है, तो आप प्लीज ये वीडियोस देख के सीख सकते हैं। आप जरूर ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, ट्राई करें कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा ना हो, बिकॉज वो आंखों के लिए अच्छा नहीं है। तीसरे टाइप के लर्नर तो होते हैं जिनको कहते हैं किनेस्थेटिक लर्नर,
किनेस्थेटिक मतलब जब तक वो लोग कुछ करते नहीं है ना तब तक वो सीख नहीं पाते। मतलब सुनते हैं तो भूल जाते हैं, देखते हैं तो भी भूल जाते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ किसी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं ना, दे लर्न बाय डूइंग, राइट। तो ऐसे लर्नर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप लिख के पढ़ाई करें, ठीक है। और आप, आई एम श्योर जब तक बच्चा क्लास 10th और 12th में आता है तब तक उसको पता चल जाता है कि उसको सुनने से अच्छी लर्निंग होती है, उसको देखने से अच्छी लर्निंग होती है, या उसको कुछ करने से अच्छी लर्निंग होती है। तो ये जो किनेस्थेटिक लर्नर होंगे ना, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई पेपर लेके कोई मॉडल बना रहे हैं, तकिया लेके घर बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम वो लोग करते हैं, तो बेसिकली वो किनेस्थेटिक लर्नर है। तो किनेस्थेटिक लर्नर के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी किताब लेके बैठे ना, तो एक एक पेज, भले ही तो एक रफ पेज हो, और एक पेंसिल वो लेके बैठे। और आप जैसे जैसे लर्न करें ना, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे पूरे नोट्स बनाएं, हर बार हम नोट्स नहीं बना सकते, नोट्स तो हम एक ही बार बनाते। चाहे आप नोट्स लेके पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक लेके पढ़ रहे हो, आप लिखते रहिए, डूडलिंग करते रहिए, आपको बड़ा मजा भी आएगा डूडलिंग करने में। छोटे छोटे पॉइंट्स में जो भी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको लर्न करनी है, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए। तो ये है किनेस्थेटिक लर्नर। वैसे 5 टाइप के लर्नर्स होते हैं, बट बेसिकली हम ये 3 टाइप के लर्नर्स की बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली 90% बच्चों में इन 3 टाइप की लर्निंग स्टाइल पाई गई है। ये एक रिसर्च है, ये ऐसे ही मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक रिसर्च को पढ़ के मैं एक बात बता रही हूँ, राइट। और चौथी बात, जहां तक आई एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग बेटर मार्क्स की, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जयश्री मैम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि अगर मैथ्स में प्री बोर्ड के अंदर मेरे 85 आए हैं, तो बोर्ड में मैं इसको 95 कैसे पहुंचाऊं। इंग्लिश में मेरे 80 आए हैं, तो इसको मैं 90 कैसे पहुंचाऊं। साइंस में मेरे 95 आए हैं, तो मैं 100 कैसे पहुंचाऊं। तो आप प्लीज एक अपने लिए अपना बेंचमार्क बनाइए, दूसरों का बेंचमार्क आपको देखने की जरूरत नहीं है। और अगेन मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी, क्योंकि पेरेंट्स बोलेंगे देखो उनका बेटा 100 on 100 लेकर आया, तुम क्यों नहीं लेकर आ सकते। प्लीज आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करिए। आई एम श्योर आजकल पेरेंट्स नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन फिर भी आप प्लीज अपने आप को चेक करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप उससे सपोर्ट करेंगे, अगर आप उसके पीछे खड़े रहेंगे, तो आई एम श्योर एक कॉन्फिडेंट बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। बस मैं पूजा, आई होप आई हैव 5 minutes or so, and I will just wrap up my talk in another 5 minutes. Yes, Right? ma'am. Yeah. So अब मैं थोड़ा सा ईटिंग एंड रिलैक्सिंग हैबिट्स के बारे में बात करना चाहूंगी, बिकॉज ये दोनों बातें भी बहुत जरूरी है। कई बार बोर्ड के प्रेशर के अंदर या स्ट्रेस के अंदर बच्चे इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। सुबह उठ रहे हैं, अपने ऑनलाइन लॉगिन कर लिया, कंप्यूटर के सामने ही बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं ना कुछ। बच्चों प्लीज, एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं है, एग्जाम इज नॉट योर लाइफ, एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट विल गो, इट विल पास। ओके, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू, आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है ना। आप अपने पेरेंट्स के लिए, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आप अपनी तबीयत का और आप अपना पूरा ध्यान रखें बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के वक्त। तो ईटिंग एंड रिलैक्सिंग हैबिट्स, सो फर्स्ट थिंग, ईट लाइट, ईट राइट। पौष्टिक आहार करें, अच्छी खुराक लें। सवेरे उठ के आई एम श्योर आपकी मम्मी आपको अखरोट बादाम भीगे हुए देती होंगी, वो जरूर लें आप। ओके, उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी ब्रेन अच्छी तरह से वर्क करेगी, ठीक है। आप हमेशा फोकस्ड रहोगे, एक्टिव रहोगे। तो ईट लाइट, ईट राइट, ठीक है। एंड ईट एट द राइट टाइम। ये नहीं कि हम सवेरे का नाश्ता हम 11 बजे कर रहे हैं और फिर दोपहर का खाना हम 4 बजे खा रहे हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि हमारी बॉडी का अपना एक रिदम होता है, सवेरे उठते ही बॉडी को नाश्ता चाहिए। तो बेटर ये है कि आप सवेरे उठ के, हो सकता है शायद आधा घंटा पौना घंटा थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, क्योंकि वो भी जरूरी है। थोड़ा बाहर घूमने चले जाएं, थोड़ा सा योगा कर ले,
ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज, मैं बाद में बोलने वाली थी लेकिन क्योंकि मैं इस सीक्वेंस में बता देती हूँ, मैं एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। हो सकता है आप आप ना 4 चक्कर साइकिल के करके आ जाए सवेरे सवेरे, ठीक है, तो ये एक्सरसाइजिंग बहुत जरूरी है। और फिर आके आप प्लीज नाश्ता करें और उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाए। सेकंड इज राइट एंड सॉल्व। तो किनेस्थेटिक लर्नर तो होते ही हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के जो सैंपल पेपर्स हैं आप जरूर उनको सॉल्व करें, राइट, बिकॉज लास्ट 10 years के जो पेपर्स हैं, बेसिकली जो आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, कुछ ना थोड़ा बहुत परसेंटेज उसमें से भी आएगा, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब आप बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए बैठोगे आपको कुछ नया सा नहीं लगेगा, अरे ये क्या है, ये तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। और कई बार हम एग्जाम लिखने बैठते तो ऐसे आंखों के आगे ना काला काला छाने लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आपने सैंपल पेपर्स सॉल्व किए हुए हैं। तो रिवाइज एंड रीकैप ये बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली बस पढ़ते रहते हैं और फिर उस चीज को रिवाइज नहीं करते। रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो भी याद किया आपको याद रहा कि नहीं रहा, ठीक है, तो स्पेशली जैसे आप अपना 30 मिनट रूल बना लीजिए कि मैं 30 मिनट्स तक कुछ भी पढ़ूंगा, और 30 मिनट्स तक पढ़ने के बाद में 5 मिनट के लिए जो मैंने पिछले आधे घंटे में पढ़ा है उसको याद करूंगा कि क्या मुझे याद रहा या नहीं। और बच्चों, आपके साथ कैसा होगा, किसी दिन आपको बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा और किसी दिन आप पूरे दिन बैठे हुए हो लेकिन फिर भी लर्न ही नहीं हो रहा है कुछ, तो ऐसा होता है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप पूरा फोकस से बैठो, आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन है तो वो उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आप एकांत में, थोड़ा साइलेंस में, थोड़ा जहाँ पे रिलैक्सिंग पीसफुल एटमॉस्फेयर है वहां पे आप बैठो। हो सकता है कि आप म्यूजिक एक बहुत ऐसी चीज है जो कि आपकी लर्निंग को बहुत एक्सेलरेट करती है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं ये क्या गाने लगा दिए, तुम गाने सुन रहे हो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो पेरेंट्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी, बहुत मतलब हाई टेम्पो म्यूजिक नहीं होना चाहिए, बट जो कम वॉल्यूम के अंदर सूदिंग म्यूजिक होता है, जैसे कि हमारा नवकार मंत्र ही हो गया। हमारा नवकार मंत्र बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि मैं क्या कहूँ उसके बारे में। हो सकता है आप एकदम कम वॉल्यूम में वो लगा दें, उससे बहुत फोकस बढ़ता है। सो रिवाइज एंड रिकैप ये रूल। स्लीप वेल, इसके बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। एंड लास्ट में एक्सरसाइज जरूर करे, साइकिलिंग कर ले, जॉगिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ शाम के टाइम आधा घंटा जरूर मिले, गप मार ले, जिससे कि आपको ना थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी है। और उठने के तुरंत बाद या सोने के जस्ट पहले मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन इज नथिंग बट अनदर टाइप ऑफ रिलैक्सेशन। उससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और माइंड जब रिलैक्स होता है तभी वो क्रिएटिव होता है, तभी वो आगे से आगे और पढ़ने, याद करने और लिखने के लिए ना तैयार हो जाता है। इसलिए ये सारी जो हैबिट्स है, ये हैबिट्स आपको बहुत यूजफुल रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। ये एक थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट का था, बट आई थिंक आई हैव टेकन माई टाइम। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी, और अगेन मैं थैंक करूंगी तेरापन प्रोफेशनल फोरम से भारती जी को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। इट इज ओवर टू यू पूजा जी। Thank you so much, Meghna ma'am, for giving such an insightful tips to all the students. Now I would like our TPF President, Bharti ji. जय Bharti ji. Jai. सबसे पहले आराध्य देव के चरणों में वंदन और जय जिनेंद्र सभी को। मैं आप सभी का हमारी टीपीएफ फैमिली से वेलकम करती हूँ। मेघना जी ने बहुत अच्छा सेशन बताया और छोटे छोटे टिप्स बट इतने यूजफुल कि बच्चों को डेफिनेटली 100% सपोर्ट करने ही वाले हैं। लेकिन फिर भी
आज का जो हमारा वेबिनार है पर्चे पे चर्चा, उसकी तो खैर सबको आइडिया हो ही गई है कि आखिर ये क्या है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूंगी। आज के बच्चे हमारे आने वाला उज्जवल भविष्य है। सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं, इवन देश और राष्ट्र की मजबूत डोर है। लेकिन आज का ये दौर, जिसमें बच्चों को गुमराह करने के बहुत सारे साधन मिल रहे हैं और वो बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसके कारण उनका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि बाद में उनको रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। और इस कोविड के टाइम में बच्चे बहुत लेजी भी हो गए, एकदम आलसी जैसे हो गए हैं। उनका पढ़ाई से मन सा उठ ही गया है। पर बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हर बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है और ये हम सब भी जानते हैं। पर इनको समझाना, मोटिवेट करना और बस उतनी सी ही ज़रूरत है। साथ ही अब एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में उन्हें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना, और इनको ये भी समझना चाहिए कि परीक्षा किसी भी स्तर की हो, यदि तैयारी सही दिशा में ना हो तो रिजल्ट निराशाजनक आता है। कोविड के इस टाइम में बच्चे भी कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो चुके हैं और ऑनलाइन स्टडी की वजह से वो इतना जुड़ ही नहीं पा रहे अपने टीचर से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लास्ट मोमेंट पर सही मार्गदर्शन देना, और ताकि आगे चलकर वो केवल आज के ही नहीं बल्कि सारी एग्जाम्स को अच्छे से टॉप रैंकर में पास करें और टॉप पोजीशन हासिल करें। आज का विषय पर्चे पे चर्चा, जिसमें हमको मेघना जी ने तो अपने बहुत सारे बहुत पावरफुल और बहुत ही इजी और बहुत अच्छे टिप्स दे ही दिए हैं। अब जयश्री मैम से भी हम बहुत अच्छे कि एग्जाम्स के टाइम पे आपको कैसे फोकस करना है वो सुनेंगे, और एग्जाम से पहले, बाद में और उसके बाद क्या करना है वो सब भी हम जान ही रहे हैं, ताकि बच्चों का टाइम का अच्छा से यूटिलाइज हो सके। आज के इस वेबिनार के लिए मैं सबसे पहले आप मेघना जी और जयश्री जी दोनों का बहुत तहे दिल से आभार, थैंक्स और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि एक रिक्वेस्ट पे आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम से हमारे टीपीएफ के लिए मैनेज किया। और आप सबको जान के बहुत खुशी होगी और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे टीपीएफ की ही फैमिली है। और बाकी मैं सबका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, जो भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनका। और आज आप डेफिनेटली यहाँ से बहुत कुछ लेके ही जाने वाले हैं। और ज़्यादा टाइम का मैं भी टाइम नहीं लेते हुए जो मेन टिप्स है अब जयश्री मैम से हम सुनते हैं। जयश्री मैम, पूजा आप जयश्री मैम का इंट्रोडक्शन देके फिर आगे का सेशन स्टार्ट। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली, और सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और फॉर द लाइफ इवन टू, एंड प्लीज बी केयरफुल, सेफ होली, enjoy your Holi but careful. Thank you. Jai Jinendra. Thank you so much, Bharti ji. Now moving on to next speaker, Jayashree ma'am. Talking about her profile, she has 16 years of teaching experience for both ICSE and CBSE boards. She has been auditor for affiliation of CBSE schools. She is also observer for board exams and superintendent of JEE and NEET exams. She was the principal of GD Goenka School and presently she is the trustee of the school. Now handing over to Jayashree ma'am. Jayashree ma'am. Thank you, Pooja. Thanks a lot. And Meghna ji, thank you so much for giving those wonderful tips. Bharti ji, you also, and all the members present here. Well, I have divided this particular session. I and Meghna ji divided this particular section into 3 paragraphs. That is time management, parents' role, and paper presentation. Time management, we all have heard through Meghna ji, and some tips for the parents also. Now I would like to share the screen so that we understand what exactly it is. But before that, one more thing, as Bharti ji said, that COVID and the pandemic, we all have gone through this pandemic.
पर मुझे पेशेंस और होप, ये दो ऐसे पैरामीटर्स है जिसने 2020-21 को मार्क किया है, और यही पैरामीटर्स हमें अपने बच्चों को भी सिखाने हैं. Now let's call where I would be discussing about the parents' role and the paper presentation. पर्चे पे चर्चा. पर्चा एक ऐसा मायना है जिसमें ये लगता है कि ये हमारी जिंदगी को सुधारेगा कि इसको बिगाड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है. ये अपने आप में आपकी एक परीक्षा है जिस पे आपको खरा उतरना है. नहीं उतरे तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. फिर भी मैं दूसरा पॉइंट आपको दिखाती हूँ अभी. पेरेंट्स रोल, जिसपे हम डिसाइड करें, बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, और दूसरा है एक्शन. मूव टू द पेरेंट्स रोल. रिसोर्स. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिवाइडिंग? पेरेंट्स का बहुत बड़ा है जब वो अपने बच्चों को ये पूछे कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए सफिशिएंट है, स्टडी मटेरियल आपके पास सफिशिएंट है, क्वेश्चनर बुक्स आपके पास सफिशिएंट है. नहीं है तो उनके साथ बैठ के उनको क्या क्या चाहिए वो सब होना बहुत जरूरी है. दूसरा है टाइम टेबल. मेघना जी ने जरूर बताया और बहुत अच्छे से बताया. मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ अभी जो 1-1.25 महीना है हमारे पास, सिट विद देम and then you realize your child really needs some time of relaxation. It's very important. कौन से सब्जेक्ट उसमें है, एक साथ एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है कि उसको दिन में 4 सब्जेक्ट करने हैं. वो बच्चे की जो किनेस्थेटिक और ऑडिटरी जो मेघना मैम ने बताया उसके हिसाब से अपने बच्चे को पहचान के और उसको उसका टाइम टेबल बना. एनकरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम अपने बच्चे को, हमें भी जब कोई एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो सोचिए, बच्चे को जब उसकी छोटी छोटी अच्छी बातों पे हम एनकरेज करेंगे तो उसका मनोबल बढ़ता है. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी अप्रिशिएट. Small things which the child does, the student is doing, appreciate that child. Never compare the child with others. Even one single mother has 2 different children. We all agree to that. So cousins, low self-esteem ले आता है बच्चे में. वो बहुत खतरनाक होता है. जो बच्चा अगर अच्छा भी कर रहा है तो भी वो नहीं कर पाता. तो parents should understand this, that they should not be discouraging or not appreciating, but they should be encouraging and appreciating. Eating healthy. In this pandemic time, eating outside is formidable. It should not be there. And घर का खाना तो बेस्ट खाना है. स्पेशली ये जो 1 महीना है जो बच्चे लिए है, इसमें उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अगर उनको ऐसे नहीं अच्छा लगता, किस को पौष्टिक आहार पहुंचाना है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और इस पे उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए. और मेडिटेशन, जब बच्चे में बहुत स्ट्रेस्ड हो, पेरेंट्स को वो ध्यान रखें कि बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड है तो उसको 5-10 मिनट उसके साथ बैठ के मेडिटेट कीजिए. ये नहीं कि तुम मेडिटेट कर लो, लेकिन उसके साथ कीजिए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा. एंड नो डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट. व्हेन आई से नो डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट, हमारे घर में जॉइंट फैमिली भी है, न्यूक्लियर फैमिली भी है, कोई भी फैमिली हो, लेकिन सभी को ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा बोर्ड तो ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो एकदम रिलैक्स होके अपनी पढ़ाई पूरी तरह कर सकता है. These are very important. और 2 important पॉइंट और है जो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, और वो है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. मुझे तो कभी कभी एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल लगता है कि बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स आर मोर कंपटीशन. प्लीज
come out of this competition and let your child live his life properly, live his childhood properly. Competition है लेकिन end of the world नहीं है, और इसलिए आपके बच्चे को कंपटीशन की राह पे ले जाइए, लेकिन फेलियर क्या होता है ये भी सिखाइए. Because failure leads to success. What we have learned so many things, we have seen so many things that children are committing suicide. The reason, they have been somewhere or the other compared, or the competition, and what will the parents say if they fail? That is what is very, very scary. So ये मेरा कहना है, और मैं अपने बच्चों से, टीचर से हमेशा ये कहती हूँ, बच्चों को फेलियर क्या होता है ये भी सिखाइए, क्योंकि अगर वो चीज सीख जाते हैं तो उनको फिर कोई नहीं रोक सकता. हमने बहुत सारी कहानियां हैं, यूएस में बहुत अच्छे अच्छे लोग कर लिया फैमिली के साथ, क्योंकि वो लोग ने इन्फ्लेशन और ये सब सहन नहीं कर पाए, और वो नहीं अपना खर्चा निकाल पाए, और उन्होंने ये रास्ते को अपनाया. तो शुरू से ही हम अपने बच्चे को ये बताएं कि आपको फेलियर से डरना नहीं है, यू ऑलवेज हैव सेकेंड चांस. द नेक्स्ट पॉइंट इज इनफ राइटिंग प्रैक्टिस. ये कोविड के टाइम ऑनलाइन एजुकेशन से हमने ये जरूर ऑब्जर्व किया कि बच्चों ने लिखने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई. लेकिन इससे क्या होता है, जैसा टाइम मैनेजमेंट में बताया गया, अगर एक पेपर आपको करना है और उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू डिसाइड कि मुझे ऐसे एक 5 मार्क का आंसर लिखना है, 3 मार्क का आंसर कितने टाइम में लिखना है. सो इट्स अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, सिट विद देम, सी 5 marks answer, how much time they are requiring to write. If they are requiring more, let them try practice that they completed within the time which is stipulated for 5 marks question. So this is very important right now when they have time of 1 month with them. Visit the center. एग्जाम के पहले जो सेंटर आपका आता है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले सेंटर पे पहुंचिए, सब कुछ समझिए, आसपास कैसा है, क्या है, उसमें कैसे होंगे, वहां के जो अंदर नहीं जाने देते लेकिन वहां के वॉचमैन से पूरा पता कीजिए, और बच्चे के साथ जाइए ताकि आपको पहले दिन वो अनफेमिलियर जैसा कुछ नहीं लगे. एडमिट कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा बहुत बार देखा गया है, एडमिट कार्ड में फादर्स नेम, मदर्स नेम कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, बच्चे ध्यान नहीं देते, स्कूल ने 2-3 बार 4 बार भेजा है, करेक्शंस नहीं होते, क्योंकि ये एडमिट कार्ड से जो आपके नाम जा रहे हैं वही आपके रिजल्ट में आएंगे, और वो रिजल्ट फिर जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या कहीं और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं और कॉलेज में जाते हैं, तो नाम में और टीसी में और रिजल्ट में डिफरेंस होने से बहुत मुश्किलें आती है. सो प्लीज बी एंश्योर्ड दैट योर एडमिट कार्ड्स आर हैविंग द सेम नेम व्हिच यू एग्जैक्टली वांट, व्हिच आर देयर इन योर पासपोर्ट्स, व्हिच इज देयर इन योर आईडी कार्ड्स, व्हिच विल कम इन द रिजल्ट, एंड दैट विल ओनली गो विथ योर result and admissions next when the child goes for other institutions. Stationery, very important, very minute point, very small micro point. You may be thinking कि इसको क्या बताना है, but I have seen स्टेशनरी, बच्चों के पास पेन बराबर नहीं है, पेंसिल बराबर नहीं है, तो ये होना बहुत जरूरी है. रबर, पेंसिल, रूलर, compass box, everything they should have along with their writing pads. So these are very important points which you should be ensuring as parents, and very important, the bottom line is be with your child as a friend. Now I come to the third part of the presentation, and that is paper presentation, which I have divided into before the paper, what you should be doing. And these are the exam essentials, especially for the students who are here joined, and the parents also, I would say, to guide them. If there are some teachers here also, please guide them. Admit card, your school ID card, your stationery, and your iPad and your writing pad is very, very important when you are going for your exams. Time management. Now, this time management is about the time which you will be using during the exams. When you will get the paper, how much time you require to read the paper, what all are the questions, how much you have to
assess कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे इतना टाइम लगेगा, इसका आंसर देने में मुझे इतना टाइम लगेगा, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। एग्जाम रूम इंस्ट्रक्शंस, जब आप रूम के अंदर जाते हैं तो आप अपना रोल नंबर देख के उस पे अच्छे से सीट नंबर, रोल नंबर एडमिट कार्ड से मिला के सीट पे बैठिए और वेट करिए अपने टर्न के, जब इन्विजिलेटर आपको क्वेश्चन पेपर देंगे। वहां पे आपको ये भी जरूरी है, जब आप वॉच पहन के जा रहे हैं और जो रूम में वॉच है उसका टाइम सेम है कि नहीं है अगर, तो इन्विजिलेटर से बात करके वो टाइम सेम कीजिए, ताकि आपका टाइम और क्लासरूम में जो इन्विजिलेटर टाइम देंगे आपको वो मैच रहे और आपको कोई टाइम मैनेजमेंट में डिस्क्रिपेंसी नहीं हो। आंसर शीट इंस्ट्रक्शंस, आंसर शीट्स में इंस्ट्रक्शन पेज होता है, फर्स्ट पेज, वो पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी छोटी छोटी बातें मिस नहीं करें। उसमें आपको ये भी देखना है कि मुझे मेरा रोल नंबर कहाँ लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एन OMR डॉटेड शीट, तो OMR शीट को कैसे भरना है और मुझे अपना रोल नंबर इन फिगर्स, इन वर्ड्स किस तरीके से लिखना है, बहुत जरूरी है। ये बहुत बार देखा गया, बच्चे इसको बहुत कैजुअल लेते हैं और रोल नंबर अच्छे से नहीं लिखते हैं, तो ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करता है। तो प्लीज बच्चों, यू हैव टू राइट your roll numbers in figures, in words properly. Your signature which you have done in your admit card, that signature only should be in your answer sheet wherever the block is provided to you, otherwise it creates problem. So please look into these small things which are given in this paper presentation. The next point is sequence. Many students ask कि मैम हम पहले ये कर ले, पहले बाद में ये कर ले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और शायद सभी एग्जामिनर्स का ऐसा मानना है कि आप सेक्शंस में जो डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर, यू कैन डू एनी सेक्शन फर्स्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट उस सेक्शन में जो भी सीक्वेंस है क्वेश्चन की, वही आप हमेशा ध्यान में रख के कीजिए। एक सीक्वेंस में अगर है 1 2 3 5 6 क्वेश्चंस और आपने 5 पहले कर लिया, 1 बाद में किया, 2 बाद में किया, ये नहीं, ये एकदम आपका गलत इंप्रेशन जाता है, प्लस एग्जामिनर को चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, विच कैन रिजल्ट इनटू योर less of marks. So please make sure that your sequence of the paper and the questions is very accurate. The second point is, points to note is that when you are writing the answers, ये answers सिर्फ languages को छोड़ के आप सभी क्वेश्चन पेपर में, सभी सब्जेक्ट में आंसर्स पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पॉइंट्स में लिखने से आपके आंसर्स क्रिस्प और प्रिसाइज होते हैं और एग्जामिनर के लिए अच्छा रहता है, उसको पता चलता है, क्योंकि पैराग्राफ रीड करने का किसी को टाइम नहीं है। हो सकता है बहुत सारे एग्जामिनर्स रीड भी करें, नहीं भी करें, तो इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट एवरीथिंग इन पॉइंट्स, बट leaving languages like English, Hindi, Sanskrit, whichever subject you have taken. Color. When I say color, it is the color of the pen. Ballpoint blue color pen must be used to write your paper. If you want to highlight anything, you highlight it with pencil. Never use red color, green color, or any other color. There's a reason behind not using red color, green color, because red is used by the examiner to correct your paper and green is used by the head examiner to see whether the corrections have been done properly or not. So please never use red color or green color. Legible writing. When I say legible writing, it doesn't mean your writing should be artistically beautiful. I mean to say that it should be neat and readable, clear words. And at times we have seen that children write something wrong, but they go on zigzag crisscrossing. Please avoid that. If you have written something wrong, it happens with anyone. So it's not something which is making you very imperfect. It is nothing like that. It is that you cancel it with one stroke. Don't do any sort of zigzag and then make your paper neat.
When I say make your paper neat, even after every answer, leave a line or draw a line. If you feel drawing line is taking your time, just leave a line, go to the second question. If you feel one particular question is taking this particular space, then दूसरा क्वेश्चन आपका आंसर जो लिखेंगे वो और ज्यादा स्पेस लगेगा, तो दूसरे पेज पे चले जाइए. बट डोंट मिसमैच. फॉर एग्जाम्पल आई से इंग्लिश में जब लेटर राइटिंग आती है, बच्चों के पास उन्होंने एक पेज पे कुछ 4 मार्क्स का आंसर लिखा, 6 मार्क्स का अगर लेटर राइटिंग है, पेज में जगह बच गई है, तो वहां से शुरू करते हैं. I would say don't start from there, start from the next page and give a small slanting line there which makes the examiner know that you have not used this part of the paper. Then is the question and answers. Very, very important. कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जब आप खत्म करते हैं उस आंसर को लिखना, प्लीज टिक द क्वेश्चन विच यू हैव आंसर्ड. देयर आर समटाइम्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. हमेशा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कीजिए. दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड द कंक्लूजन. When you are feeling that this particular question, मुझे आंसर अभी नहीं आ रहा है, so don't skip that particular question. Instead, उसके लिए आप स्पेस रख दीजिए, अंदाज एक स्पेस रख के दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका टाइम बचे. फिर जब सब कुछ पूरा हो जाए, आप वापस आके उस पे लिखिए. This is very, very important. Margins. जब हम मार्जिन की बात करते हैं, एक आंसर शीट में 2 साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड मार्जिन एंड लेफ्ट साइड मार्जिन. सारे पेपर्स में आप लेफ्ट साइड मार्जिन लीजिए और फिर अपने आंसर शुरू कीजिए. इसका एक कारण है, जब आप सारे पेपर्स को अटैच करते हैं तो उसमें क्या होता है, मार्जिन पे अगर कुछ लिखा होता है तो वो दिखाई नहीं देता है एग्जामिनर को, और उनको पूरा उसको ढूंढना पड़ता है. सो माय सजेशन एंड एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु विल बी राइटिंग बोर्ड एग्जाम, आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मार्जिन रखिए और मैथ्स पेपर में राइट साइड पे भी मार्जिन रखिए और उसको एज रफ यूज कीजिए. एंड वंस यू हैव यूज्ड इट एज रफ for the particular maths problem which you are doing on that paper, then you cancel it with a pencil line, not zigzag or crisscross. So these are very, very important points which I am telling you, although these you may be thinking, but then they are very important because your mistakes done take away your hard work. Word limit. Some people have this thought, many people come to us कि मैम 3 मार्क का क्वेश्चन था, मैंने इतना सारा लिखा, फिर भी आपने मुझे 1.5 ही दिया. इतना सारा लिखना वो बात नहीं है कि आपने कितनी लेंथ लिखी है, आपने क्या कंटेंट लिखा है. And that is the reason CBSE, ICSE, ISC, they all have word limits in their questions. वो word limit को you should be following. You should be very crisp and precise. Otherwise, your word limits will go away and the examiner would be actually looking for exactly what was the question, what was the answer. So please avoid that. When I say word limit, I also want to say don't use SMS language. SMS, that is short forms. Please write the full form of whatever you are writing, except in the English paper of CBSE schools, that is note making, where you are permitted to write the short forms. So this is very important. The second is diagrams. At times in the question itself, it is written, show with a diagram. But at times it is not written. But if you give flow charts in SS paper or in BST or in commerce or in SS, the flow charts actually gives the examiner the glimpse that how much the child is knowing. Diagrams wherever necessary in science, physics, chemistry, biology, please do that. In maths also, when you have certain problems regarding trigonometry, regarding mensuration, you must give the diagram in the corner. That may not be drawn with a scale, it may be a rough diagram, but it gives you, and label it properly, but it gives the examiner and you have an edge over the answers. So this is very important. Optional. There are optional questions in your paper.
But these optional questions, you have to be very smart कि मैं किस optional question में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ बहुत अच्छे से, और उसी को आप attempt कीजिए. But optional में जब आप question number दे रहे होते हैं तो उसको बहुत अच्छे से दीजिए. क्वेश्चन नंबर देखना और आंसर नंबर लिखना बहुत जरूरी है, बहुत केयरफुल होना चाहिए. Supplementaries. And I'm very sure none of you would be writing your answers in one complete sheet, which is given as main sheet. Some of you may be requiring 1 sheet, 2 sheet extra, which is known as supplementary. अगर आप देखेंगे main sheet के front page पे होता है column, how many supplementaries used. Please fill that column properly. जैसे आप supplementary लेते हैं, आप उस पे number लिखते जाइए. This is my first supplementary. This is my second supplementary. तो क्या होता है, क्योंकि आप उस समय तो tie up नहीं करते, and you must tie up your answer sheets 15 minutes before the actual stipulated time to complete the paper. इससे क्या होता है, आप जब टाई अप कर रहे होते हैं तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि मैंने कौन सा आंसर कौन सी सप्लीमेंट्री में लिखा. आपने ऑलरेडी नंबरिंग कर दी है सप्लीमेंट्रीज की, आप फटाफट लिए, उसमें आपने पिन डाला, होल किया, और ऑलरेडी होल होता है तो बहुत अच्छी बात, उसको टाई अप किया, बहुत अच्छे से टाई अप किया, और फिर अपने सप्लीमेंट्रीज गिन के और वो कॉलम में ब्लॉक में आपको भरना है, ताकि आपकी सप्लीमेंट्री अगर बाई चांस निकल भी जाए तो एग्जामिनर नोज कि आपने इतनी सप्लीमेंट्री यूज की थी और ये 1-2 मिसिंग है. So you have all the rights to say कि my supplementaries were submitted but it is missing. So this is generally ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है ये कभी नहीं होगा. So इसलिए precautions are much better. So these are certain things which you should be careful of. And the next thing is the revision. 15 minutes, as I said, 15 minutes before you hand over your paper to the invigilator. These 15 minutes, apply it very nicely. आप अपने ये 15 मिनट आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर को साथ में लेके, क्वेश्चन नंबर 1, yes, done properly, रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए. 2, डन प्रॉपरली, इस तरीके से आप कीजिए. इंग्लिश में जब कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट फर्स्ट read the questions which are asked for you from the comprehension and then start reading the comprehension. What happens when you read the questions first, जब आपने question पढ़ लिया और आप फिर बाद में question का comprehension पढ़ रहे हो, आपको पता होता है कि मुझे ये question का आंसर यहाँ मिलेगा, ये question का आंसर यहाँ मिलेगा. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो उस पे आप चले जाइए, थिंक करके लिखिए. ऐसा भी बहुत बार देखने में आया है सीबीएसई या आईसीएसई, कहीं भी किसी भी बोर्ड में कभी आउट ऑफ द पोर्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो डोंट पैनिक, व्हाटएवर यू नो, अटेम्प्ट इट. You must attempt it, क्योंकि ये देखा गया है कि जिन बच्चों ने attempt किया उनको full marks मिलते हैं उसमें. So that is what is very essential. Very small, minute things, but if you really look into these minute things, you will be doing great. If I would say your preparation is good, which I am actually sure that you must be preparing very hard with your parents, your teachers, and your friends. So this is what it is. And after the paper done, I have seen children discussing the paper. I would say never discuss your paper because there are certain disadvantages. The disadvantages are when you discuss and you feel that I have not written as my friend has written, your esteem is low. And this low esteem doesn't help you prepare properly for the next exam. Yes, of course, you can discuss after you've finished all the exams so that you can come out that what can be my score. But just after the exam, don't ever discuss the paper. Pooja, any questions anywhere? Anybody want to ask? Jai Jinendra. So if anyone has any questions, they can just raise your hands. Hope I have cleared whatever exactly is needed when to write the paper.
Yes, ma'am. Actually, Still, everything you have explained very thoroughly, and every minute things have been explained. I don't think that anyone has any questions right now. thank you. Well then, I would say to all my children, all the parents, all the best, and always be calm and have faith. Whenever you feel you are stressed, just take a 10-minute meditation and then things will be going as you wanted with full energy. Thank you so much. Yeah, Prisha there, she wants to ask a question. Yes, Prisha, how are you? Just a minute, I'll mute her. Prisha, you can unmute yourself. Thank you so much. Yes, ma'am, I'm doing very good. How are you, ma'am? I'm fine, Prisha. So nice to hear from you. Same here, ma'am. Yeah, what's your question, Prisha? Ma'am, actually, there are some questions in the paper which are optional. Like there are 5 questions given and we have to attempt any 4. Okay. For an example. So is that so that we have to attempt those which we know first 4 will be counted by No. the In that optional, when you have 5 questions, you can attempt any 4. You can come up with the sequence. That time sequence is not needed. Okay, whichever you know 4, but make sure, suppose you have done first one, you want to do third one, then don't write question 2, you write question 3. Yeah, ma'am, but then if I attend all the 5, and yeah, if you attempt all the 5 and you feel that the time available is good for you and you can attempt all the 5, but then make sure that the next part of the paper you can attempt if all these 5 questions you can answer. It happens so that examiners say that they take the first 4, but it is also seen that they take the best 4. So that is not a problem. So what should I do? First, I should write the ones which I'm confident about, or I should write all the 5 and the best 4? You should be writing what you are confident about. And if you have time, leave little space. If you have time, attempt the 5th one. But generally it is said, as for example, I'll tell you, if it is asked disadvantages and advantages, both are asked, write both. But if one of them is asked, write one only. If there is a distinguished question, put them in columns. Don't write distinguish one paragraph and the other paragraph down. Put them in columns and then write this part and the other part. These are actually the small nuances which you should consider while writing the paper. And never worry about the optional. If you have time, write the 5th one. But otherwise, I would always advise write the best 4 which you know. Okay. Good afternoon, ma'am. It's Prisha's mother here. Sorry to bother you. Yes, ma'am. Please tell me. Thank you so much for your valuable and actually all the teachers here, and thank you for giving such a wonderful tips. It was Thank just you, a little bit of to ask. Usually, it is seen that while giving the exams, I also used to make this mistake. If 4 questions are there, as you said that you go order-wise for second, third, fourth, whichever. Right now, if I'm attending first and third, I'm just leaving the space. But maybe it happens every time that more space is being left for that question. So we just write few lines and then the space is being left. Is that giving wrong? There I would say, as a student, just a minute, ma'am. As a student, suppose you have 1, 2, 3, 4, 5, attempt any 4, right? Yeah. Now I have attempted the first one. I want to write the second one, but I want to think over it. So you do one thing, you want to write the third one because you're confident about it. So after 1, you write third, write question 3, answer. Okay, then write 4th, then write 5th. Then you leave 1 page for that question 2. So you won't be required. This much a child understand that how much would be required to write this answer. And when you feel the time is not enough, you just cancel that page with 1 single line with pencil. Otherwise, write that on that particular page. No problem. Is it clear? Hello? Hello? Yes. Is it clear, ma'am? Yeah, it is clear. But the thing is, 4 questions has to be attended for 5 out of 5. Yes. So वो जो 4 question है, उसमें first, second, third, fourth I'm attending. I'm sure I'm going to attend. Sometimes it happens कि time ज़्यादा चला गया और 4th question मुझे ऐसे लगता है या बीच में 3rd question I'll come back.
तो वो जो ज्यादा हर बार होता है कि थोड़ा ज्यादा ही स्पेस छूट जाता है, दैट इज गिविंग अ रॉन्ग इंप्रेशन टुवर्ड्स द एग्जामिनर, और चलता है। नो रॉन्ग इंप्रेशन एट ऑल मैम। एक इसमें स्मॉल चीज है, आपको ये देखना है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए 5 लाइन छोड़िए, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए 10 लाइन छोड़िए, इतना आपको अनुमान लगाना है। ओके, है ना? ओके, या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? No, thank you so much ma'am. And if you have any doubt, you can call me on my number. Pooja has my number. You can always come and contact me. Thank you so much. Thank you. Anything else? Yeah, one question is from Sumanji. Yeah. Suman, please unmute yourself. Jai Jinendra ma'am. Jai Jinendra, Suman ma'am, how are you? Yes, just fine. आप कैसे हो मैम? एकदम ठीक, बताइए। बस एज ए पेरेंट में, जैसे अभी मेरा बेटा 10th में आया ही है, अच्छा। तो मतलब जो पीक में जो एंड में जो हमको हसल्स और वो होता है उसको रिमूव करने के लिए वी शुड प्लान फ्रॉम द बिफोर हैंड, एक टाइम टेबल सेट करें बच्चों के साथ मिल के कि कितना टाइम किस में अलॉट करना है, कौन से सब्जेक्ट में, या जैसे गेम खेलने में या जो भी रिलैक्सेशन में। तो अभी बिफोर हैंड प्लानिंग करें, ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत अच्छा है अगर शुरू से प्लानिंग करके काम करते हैं, पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए, बच्चा बिल्कुल मैकेनिकल हो जाए। हाँ, ये है, शुरू से करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने का आजकल हार्ड और स्मार्ट दोनों पे काम होता है। हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। जैसा मेघना जी ने भी बताया, बहुत सारे तरीके के बच्चे होते हैं, ऑन्ट्री है और सब आपको कि मेरा बच्चा किस तरीके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि विजुअल अगर होता है तो बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो उसके लिए अगर स्कूल में दिखा तो आप उसकी अवेयरनेस रखिए कि आज बच्चे को क्या क्या सिखाया गया, और बच्चा सैटरडे संडे जब आपके पास है ठीक है टाइम, तो मेरा ऐसा मानना, और मैं हमेशा पेरेंट्स से ही कहती हूँ कि 5 दिन में क्या पढ़ाई हुई है उसकी एक नोट लीजिए और बच्चे को बोलिए इतना कि आप उन्हें संडे को बता दीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो, बच्चे रिलैक्स हो जाए। कि होता है बच्चे पढ़ते नहीं है, जो स्कूल में होमवर्क दिया उतना करते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं अभी एग्जाम नहीं है, और बस लास्ट में वो एक माउंटेन की तरह उनके सामने आता है और मुश्किल हो जाता है। तो आप जो ये कह रही हैं कि हमें पहले से, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखिए। रिक्रिएशन बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैम अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सेशन एवरीथिंग, ट्यूशन स्कूल सब ऑनलाइन ही सेशन चल रहे हैं, तो एवरी टाइम वो मॉनिटरिंग करना कि बच्चे कर क्या रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत टफ हो गया है। नहीं, मैंने कब कहा मॉनिटरिंग एवरी टाइम नहीं, मैंने कहा सैटरडे संडे जब बच्चे को उस दिन पढ़ाई नहीं, उस दिन मॉनिटर कीजिए। और मॉनिटर भी मॉनिटर की नहीं फ्रेंड कि आज तुमने इसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ा, कितना पढ़ा, आता है नहीं आता है, नहीं समझ आया, उसके बहुत अच्छे प्यार से उससे मैंने देखा है बहुत कंपैरिजंस बहुत खराब है, बिल्कुल मत कीजिए। ओके मैम। और सबसे बच्चों से ज्यादा तो पेरेंट्स में कंपटीशन होता है कि उसे बेटे को इतना मिला, मेरे बेटे को क्यों नहीं मिला। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, कि उस यूनिक को रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू मैम, इट वाज अ ग्रेट सेशन बाय बोथ ऑफ यू। थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Next question is from Bharti ji. Yeah. Yes ma'am. हेलो मैम, एक्चुअली अभी आप बोल रहे हो कि कंपैरिजन मत करो बच्चों से, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तो बोलना ही पड़ता है, बिकॉज आज का जो कट ऑफ हो गया है कहीं अच्छी जगह एडमिशन के लिए, तो कैसे उनको नहीं बोले कि भाई तुझे करना ही पड़ेगा या इतना लाना ही रहेगा, कैसे उनको कैसे समझाए, क्योंकि एट ए टाइम अब 1 महीना भी नहीं बचा है बच्चों के लिए और इतने रेस मोड पे अभी तक है बच्चे। आप जो कह रही हैं बिल्कुल अच्छा, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, बहुत जनों की यही, पर मेरा ऐसा मानना है, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, एक ने डेंटिस्ट्री पढ़ाई की है, साइंस लिया, एक ने कॉमर्स लिया, जबकि जिसने कॉमर्स लिया उसका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसने कॉमर्स लिया क्योंकि उसको साइंस में इंटरेस्ट भी नहीं था, और वो उतनी क्या होता है कई बच्चे घंटों पढ़ सकते हैं, कई बच्चे 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते,
तो यही मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स में आप अपने बच्चे को स्पेशल मानिए। जरूरी नहीं कि आपका बच्चा उस कॉलेज में जाए, और आजकल तो कॉलेज में ऐसे उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स देता है बच्चा, उसके लिए प्रिपेयर करता है, अगर 90% आ जाता है तो जो जीपीज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, उसमें निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है आजू बाजू क्या हो रहा है। तो मेरा ये मानना है बच्चों को मार्क्स से ज्यादा आजू बाजू क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इंडिया की कहाँ जा रही है, कंट्री की, वर्ल्ड की कहाँ जा रही है, आप किस जगह खड़े हो, आपके सूरत में क्या हो रहा है, आपकी सिटी में क्या हो रहा है, ये सब की जानकारी उसमें हो। तो यही होता है जीडीज में। इंटरव्यूज में आपके बच्चे, जब आप कंटिन्यू बच्चे को उसको कंपेयर नहीं करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं, कि मेरे पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशल हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस उसको इंटरव्यू में झलकेगा, क्योंकि नर्वस हुए बिना इंटरव्यू देगा। तो यही देखते हैं, आपको पूछते हैं इंटरव्यू में कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, कौन गिनता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट, भाई मैं पता नहीं, यही हो गया कॉन्फिडेंस नहीं होना। इसे तो मैं तो 20 सीढ़ियां चढ़ के आया हूँ, खत्म बात। वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना, यस आप बच्चों को बताइए कि हाँ तुम में कैपेबिलिटी है, लेकिन तुम हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, जिसके कारण तुम यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे। तुम थोड़ा सा हार्डवर्क करो, तुम यहाँ तक पहुंचोगे, इतना जरूर हम कह सकते हैं। मैम ये हार्ड वर्क के लिए मैं कैसे मोटिवेट करूं, बिकॉज मेरा बेटा भी क्लास 12th में है एंड वो तो खुद ही बोलते हैं मुझे तो रेस्ट करने में बहुत मजा आता है। क्या करने में मजा आता है? मतलब स्टडी करने से ज्यादा तो मुझे रेस्ट करने में बहुत मजा आता है। लाइक वो मैं उसे जब मोटिवेट करती हूँ या कभी कभी तो गुस्सा भी करती हूँ कि तू क्या कर रहा है, तो फिर तो हंस के उसमें ऐसा हो सकता है, उसमें ऐसा हो सकता है आप उससे अनजान होके उसको कई बड़े लोगों की बायोग्राफी सुनाइए। आप खुद पढ़ के उसको शॉर्ट में उसकी बायोग्राफी बताइए कि भाई इस इंसान को कुछ भी नहीं था पर इसने इतना किया। फिर ये मत कहिए कि देख तू भी कर सकता है, ये नहीं, ऐसा किया। अब वो समझे नहीं समझे उस पे है, तो डोंट पुश देम। इतना जरूर कीजिए कि ये तुम्हारा करियर डिसाइड करेगा। Whatever you have to do, you have to do. Now it's you have to decide कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। Let them think, let them decide. श्योर मैम, थैंक यू सो मच। शायद मैं उसे टॉर्चर करना बंद कर दूं आज के बाद। वो मुझे बोलता है घर में आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, फिर क्या जरूरत है किसी और को लेने की। आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप उसको कहिए कि आप, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी नर्वसनेस बहुत अच्छी होती है। आपको मैं ये बताऊंगी, जब ये सेशन शुरू होने वाला था मैं खुद इतनी नर्वस थी, अरे क्या इतनी बार होने के बाद भी। मेरे बेटे ने मुझे सिखाया, मम्मा नर्वस नहीं होना है, आपको जो बोलना है आप बोल देना। तो नर्वसनेस थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ा स्ट्रेस अच्छा होता है। आप स्ट्रेस मत लीजिए, उसको स्ट्रेस दीजिए, बॉल उसके कोर्ट में डालिए। थैंक यू सो मच दोनों मैम के लिए, जयश्री मैम भी और मेघना मैम भी। बहुत टिप्स उसके यूज आए नहीं आए, बट मैं डेफिनेटली अपने पे फॉलो करके उसे कंफर्ट जोन में स्टडी करने के लिए मोटिवेट करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। जी जी, उसको बायोग्राफीज जरूर सुनाइएगा अच्छे लोगों की, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा एक्सर्प्ट्स पढ़ के उसको जरूर सुनाइएगा। पक्का पक्का, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मेघना मैम वांट्स टू से समथिंग। हाँ, ये जो भारती जी ने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत नॉर्मल है। बच्चा बोलता है कि मुझे पढ़ाई में नहीं मजा आता है, मुझे रेस्ट करने में ही मजा आता है। तो जयश्री मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई, बट देन स्टिल मैं कहना चाहूंगी कि और जैसा कि आप बोल रहे थे कि आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, तो पेशेंस, मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल चीज है। ये एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। ये कभी खत्म नहीं हो पाता जब तक हमारे बच्चे अपने अपने करियर में नहीं आ जाते तब तक। तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ होमवर्क एट आवर एंड देन ऑन देयर एंड। वो लोग तो हम जैसे होंगे वैसे ही हो जाएंगे वो भी। सही बात है मेघना जी, एकदम सही बोला आपने। Thank you so much. Thank you, but thank you so much for this opportunity. बहुत अच्छा लगा। Thank you TPF for this particular session, and if any other sessions like this in future, I'm always available. Thank you so much.
थैंक यू सो मच मैम। आप दोनों ने इतना अच्छे से समझाया, हर एक बारीक चीजों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आई डोंट थिंक कि अब किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम के रिलेटेड किसी भी तरह का प्रेशर, किसी भी तरह का डाउट या कुछ भी रहेगा। So it was a very wonderful and very insightful session. Thank you both of you, and we wish कि आगे भी आप इसी तरह हमारा साथ देते रहे ताकि हम और भी अच्छे प्रोग्राम्स करते रहें। Of course. Sure, of course. Thank you. Thank you so much. Thank you, TPF. जय जिनेंद्र। Yes. जय जिनेंद्र।